Okay, sure. Okay. Hi everyone, this is Dr. Mansi back again on the Teach Beyond Boundaries with Homeopathy 360 webinar series. And today we have another passionate homeopath with us. The name, which I hope many of you know, Dr. Ankush Shukla, BHMS, MD, homeopathy consultant, homeopathic physician, educator, researcher, and speaker. We know Dr. Shukla from his expertise in the materia medica and how he teaches her his students and followers on the online platform. And he comes from a family deeply rooted in homeopathic tradition. He is the son of Dr. S.K. Shukla, a renowned senior homeopathic physician in Prayagraj with over 30 years of clinical expertise. Inspired by this legacy and guided by his mentor, Dr. Shukla combines classical principles with modern perspective to deliver holistic care and promote homeopathic education globally. He has done his MD dissertation in the title Influence of Accessory Circumstances in the Development of Pre-Hypertension and its Treatment with Individual Homeopathic Medicine. He has done many clinical trainings and practice under Dr. Rashid Akhtar for over 6 years, currently practicing in Prayagraj and has his Rekha Homeopathic Center and provides personalized treatment for acute and chronic conditions with a strong emphasis on clinical homeopathy and evidence-based approaches. He has done many research and publication on the national level and has also received awards and recognitions like awarded for service during COVID-19, multiple recognition and academic achievements throughout his college tenure. He is also invited as a speaker and professional roles and also shows his digital presence on Instagram and YouTube while educating his followers and students. So today we have a very interesting topic that is from bench to bedside, a young homeopath's leap into practice. And I hope you all are waiting for this wonderful session that we are going to have. Now I would like to hand over the mic to Dr. Shukla sir. Thank you so much for coming on this platform. Thank you, Dr. Mansi. Thank you for that introduction. And I hope we learn something new today with this topic. Should I share my screen now? Yes, sir, sure. Is the PPT visible? Yes. Okay. So I should begin now. Hello. Yes, sir. Okay. Thank you. So good evening, everyone. I hope you are here to learn something new. I wanted to share some of my experience that I have gained throughout the last 10 years in homeopathy. I started my UG in 2015 from Baxter Homeopathic Medical College and then completed in 2020, then pursued MD in Organon of Medicine from the same college and have just completed my MD also. So, throughout this journey of the last 10 years, there has been some learning curves in my journey, which I want to share with you today. So, the topic for today is from bench to bedside, the benches of classroom and the bedside that you will see the patient in your clinical practice. So, I want to show you what I have personally learned from different aspects throughout these 10 years and show you some of the cases in the beginning of my practice that I got and what I learned from them. तो लेट्स बिगिन। सो जब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने क्या-क्या सीखा, तो मैंने अपनी जितनी भी लर्निंग्स है उसको 5 मेजर पॉइंटर्स में या 5 कोर प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि आपको भी ईज़ हो समझने के लिए और मैं भी उसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियरली समझा पाऊँ। This is the photo of my guru, that is Professor Dr. Rashid Akhtar sir, under whose clinic I have practiced for the last 6 to 7 years, जिसमें बहुत सारे chronic cases हमने देखे उनके साथ और acute cases भी देखे और सीखा उन cases से। तो वो 5 कोर प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं,
तो उसमें पहला आता है कि रीड एज मच एज यू कैन इन कॉलेज। When I say this, it is so important to read in college because जैसे जैसे आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के टूवर्ड्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप यूजी से पीजी में आएंगे, फिर पीजी से आप एमडी डेजर्टेशन प्रिपरेशन की टूवर्ड्स जाएंगे, और जैसे जैसे आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस चालू करेंगे, द टाइम दैट यू गिव इन रीडिंग होम्योपैथिक लिटरेचर धीमे 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 कम होता जाता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस और एप्लीकेशन उतना ही धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। सो अगर मैं मान के चलूँ कि 80% रीडिंग का टाइम हमें यूजी में मिलता था और पीजे में मिलता था, तो वही 80% अब हमें एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो 20% बचता है वो हम अपना रीडिंग में लगा सकते हैं। तो जितना आप शुरुआत से होम्योपैथिक लिटरेचर को समझेंगे, पढ़ लेंगे, उतना आपको जब एप्लीकेशन करना होगा, जब उसको अप्लाई करना होगा, तो हेल्प होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस और टेकिंग केसेस। I have many students who are learning organon of medicine of BHMS level from me, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज में इस तरीके का एक्सपोजर नहीं है। जनरली ये प्राइवेट कॉलेजेस के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी होते हैं, सर पढ़ाई इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, या वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं रहते अपने इन्वायरमेंट से। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो आपको, ये 2 चीज़ें कभी भी ऐसा ना हो कि इसमें कमी आ रही हो। एक होता है कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम एनीवन, यू शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर आप जो बोला जा रहा है वो बस मान लेंगे, तो कभी भी आपकी लर्निंग कर्व का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। क्योंकि जब आप डाउट करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे डिफरेंट लिटरेचर से एक ही टॉपिक को, तब हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स निकल के आएंगे, और उन डाउट्स को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वही टॉपिक की जो एक ग्रोथ होती है आप ही के अंदर, कि पहले मुझे इसी टॉपिक को थोड़ा सा आता था, थोड़ा सा मैंने समझा, एक बेसिक लेवल पे समझा, अब उसी के चार अलग अलग डाउट से, चार अलग अलग रेफरेंसेस से पढ़ के थोड़ा सा और डेप्थ में मैं समझ पा रहा हूँ उस टॉपिक को। सेकंड थिंग इज कि केस टेकिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि सर केस टेकिंग करने को नहीं मिलती, क्योंकि एक पेशेंट पे कई बार 4-5 बच्चे होते हैं, या सीनियर केस ले रहे होते हैं, या हमारे पीजीज केस ले रहे होते हैं, और हमें मौका नहीं मिलता। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है, जो मैंने भी अपनी यूजी में करा है, कि कोई भी केस ले रहा हो, कैसा भी केस मिल रहा हो, किसी को भी फेस वैल्यू पे जज मत करो। अगर आपके सीनियर केस ले रहे हैं, आप वहां पर खड़े होइए, आप पॉइंटर्स नोट करिए कि हाउ इज ही आस्किंग द क्वेश्चंस। आप नोट करिए कि वो किस तरीके की चीज निकालने के लिए कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्म करना जितना आप ये सीखेंगे इस तरीके से, जब आप केस अगली बार लेने जाएंगे, तो आपको इवेंचुअली वो चीज याद आती रहेगी, और आप केस आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि अगर 4-5 लोग भी एक केस ले रहे हैं, आप अगर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसिवली सुनने की कोशिश करिए। जितना भी आपको यूजी में समय मिल रहा है, आप ये मत सोचिए कि मैं इसमें दवाई क्या दे रहा हूँ, या मैं आगे जाके ऐसे कैसे हैंडल करूंगा। ये तो बात की बात है, पहले केस टेकिंग के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपने केस को लेना सीख लिया, फिर ये जो आगे के प्रोसेस हैं उतने ही आसान होते जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि डॉक्टर एलिजाबेथ राइट हबार्ड की बहुत फेमस एक कोटेशन है कि a well taken case is half cured. So it applies in practice also. Then one more important thing that I learned is learning actively and passively from the clinical exposure that you are getting. अब ये एक्टिव और पैसिव लर्निंग की क्या बात है? क्योंकि जब मैं क्लिनिकल एक्सपोजर मेरे पास आया, जब मैंने सर के अंडर क्लिनिक में सीखना चालू करा, एक तो एक्टिव लर्निंग होती है कि मान लीजिए सीकेडी का कोई केस आया, और मैंने देखा कि सर ने केस टेकिंग करी, और सर ने ये दवाई प्रिस्क्राइब करी पर्टिकुलर सीकेडी के केस में। दिस इज एक्टिव लर्निंग, आपको दिख रहा है सामने वो प्रिस्क्राइब हो रही है, आप दवाई बनते देख रहे हैं, अगली बार पेशेंट आया, अच्छा आराम हुआ। Now, when I talk about passive learning is something you have to personally do. The teacher may not be able to convey it to you. फॉर एग्जाम्पल, जब भी क्लिनिक में सर को मैं केस लेते देखता था या करते देखता था केस टेकिंग, तो मैं वो क्वेश्चंस नोट करता था जब वो किसी पर्टिकुलर स्पीयर ऑफ एक्शन में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज आस्किंग द फिजिकल जनरल्स ऑफ द पेशेंट एंड ही इज आस्किंग फॉर द डिजायर्स, सो जनरली हम क्या पूछते हैं, खाने में क्या पसंद है, पर मैं देखता था कि सर और किस तरीके के सवाल कर रहे हैं, जो कि इसी खाने में क्या पसंद वाली चीज को बाहर निकाल के लाएं। कि वो क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जो कि इतना अलाउड नहीं है, पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जस्ट टू ब्रिंग आउट द पेक्यूलियरिटीज।
तो इस तरीके की जो नुआंसेस होते हैं केस टेकिंग के, ये आप वहां पर सीख सकते हैं पैसिवली। ये आपको टीचर खुद नहीं बताएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछो, ये आप वहां देख रहे हैं और आपको नोट डाउन करना चाहिए। देन आपने केस देख लिया, आपने अपनी टोटलिटी बनाई, नो डाउट जो प्रिस्क्राइब हो रही है वो प्रिस्क्रिप्शन रहने दीजिए। आप घर जाइए, आप उस केस को एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए, उसकी केस प्रोसेसिंग करिए, फिर उसकी एक टोटलिटी बनाइए और देखिए आपके दिमाग में कौन सी मेडिसिन आ रही है। अगर आपके दिमाग में वही मेडिसिन आ रही है तो इट इज वेल एंड गुड, आपको रीजनिंग मिलेगी, आपको पता चलेगा कि व्हाट वर द पॉइंटर्स दैट एग्जिस्टेड इन द केस व्हिच लेड टू दैट रेमेडी। अगर आपको वो रेमेडी नहीं निकल के आ रही है, कोई और सिमिलर रेमेडी निकल के आ रही है जो कि आसपास की है, तो आप जाके फिर क्वेश्चन करिए अपने टीचर्स कि सर मैंने रेपर्टराइज करा एंड मेरे रेपर्टराइजेशन या केस प्रोसेसिंग के बाद ये चीज निकल के आ रही थी विच वाज नॉट द रेमेडी दैट यू गिव। What is the difference? Why it happened that you gave that medicine and not this medicine? These are the question which when you will ask to the teacher, then only he will be able to reply. अगर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, पैसिवली जाके आप पीछे से ये वर्कआउट नहीं करेंगे, तो कभी भी आपको एक्टिवली टीचर खुद ब खुद ये चीजें नहीं बताता। एंड जनरली फिर हम एक नोशन क्या बना लेते हैं कि ये सर ज्यादा बताते नहीं है। ज्यादा टीचर से निकालने के लिए, ये जनरली मैंने होम्योपैथ्स के अंडर सीखने से ये पाया है कि जितना आपको निकालना है उतना आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बहुत फेमस कोटेशन है डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स का कि अगर किसी यंग होम्योपैथ को जानना है कि व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू यू, जो इनके पहले चैप्टर की लास्ट लाइन भी है फिलोसफी की, तो शो व्हाट यू हैव टू ऑफर टू होम्योपैथी। आप कितना दे रहे हैं, इसी के प्रोपोर्शनेट में आपको मिलती हैं चीजें होम्योपैथी में। देन कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग मेडिसिन, नॉट जस्ट प्रिस्क्राइबिंग इट। जनरली हम जब क्लिनिकल एक्सपोजर में जाते हैं तो हम ये तो सीख लेते हैं, चलिए हमने एक्टिवली भी सीख लिया, पैसिवली भी सीख लिया कि किस तरीके से क्या चीजें हमें केस टेकिंग में सीखनी है या प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमें रेमेडीज की डोज सिलेक्शन या फिर पोटेंसी सिलेक्शन में सीखना है। पर ये दवाई बनानी कैसे होती है? If the physician is prescribing CM potency in water doses, if the physician is prescribing CM potency in globules, if the physician is prescribing LM potency, how do you make these medicines? आप फार्मासिस्ट के पास जाइए, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, देखिए कि मेडिसिन बनती कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में जब आप अपनी क्लिनिक खोल रहे हो तो आपके पास शायद वो लग्जरी ना हो कि आप एक फार्मासिस्ट रख पाए। शुरुआत में आपको ही खुद दवाई बनानी पड़ेगी, आपको ही, और फार्मासिस्ट रखेंगे भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो होम्योपैथिक बैकग्राउंड का हो या वो जानता हो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे बनती हैं। यू आर द वन हू विल टीच हिम कि कैसे बनानी है दवाइयाँ। एंड अगर आप ही इसमें बहुत वीक रहेंगे तो फिर आप बताएँगे कैसे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो जनरली हम मिस करते हैं, जब भी हम किसी के पास सीखने जाते हैं या बेसिकली हम अपनी ग्रोथ के लिए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। देन द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मेरी लर्निंग से मैंने सीखा है और जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होम्योपैथिक लिटरेचर में बहुत स्टॉलवर्ड्स ने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इज दैट लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। जितना भी आप स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जितना भी आप आगे मॉडर्न लेवल ऑफ होम्योपैथी पढ़ना चाहते हैं, ऑल इज गुड, यू कैन डू इट। बट व्हेन यू आर इन यूजी अंडर ग्रेजुएट, यू शुड स्टिक टू द सिलेबस दैट इज गिवन टू यू। जो बेसिक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक फिलॉसफी है, जो बेसिक मटीरिया मेडिका की किताबें हैं, पहले उस पे अपना ग्रास्प बनाइए। कभी-कभार हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने के चक्कर में, बहुत बेसिक चीज़ों की एक नॉलेज को मिस कर देते हैं। अगर आपने बेसिक थोड़े-थोड़े किताबों का एक पकड़ बना ली, जैसे एलन की नोट्स, बोरिक मटीरिया मेडिका, अगर इस पे आपने पकड़ बनानी, इवन नैश मटीरिया मेडिका, तो ये आगे मैं आज आपको जो केसेस भी दिखाऊँगा, उसमें मैं दिखाऊँगा कि कैसे ये बेसिक किताबों से आपके केसेस बहुत ईज़िली सॉल्व होते हैं और शुरुआती प्रैक्टिस में आपको कितनी इससे हेल्प मिलती है। Even one of the famous stalwarts in homeopathy said कि if you have passed your UG and after that 5 or 5.5 years of doing your UG, आपने बस ये समझ लिया कि हर होम्योपैथिक लिटरेचर की किताब का एसेंस क्या है या उसको पढ़ते कैसे हैं, देन इट इज सक्सेस फॉर यू। वो बोलते हैं कि आपने यूजी सक्सेसफुली पास किया है, मतलब समझ लीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये कुछ बेसिक लर्निंग्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि बेड साइड तक लाने के लिए फ्रॉम द बेंचेस आपको बहुत मदद करेंगी। देन the major aspect that I wanted to start this lecture today is before they see your prescription, they see you. इससे मेरा मतलब क्या है? एज अ यंग होम्योपैथ जब भी हम अपनी क्लिनिक पे बैठ रहे हैं शुरुआत में,
तो एक चीज हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि वी आर नॉट सीजन प्रैक्टिशनर। हम 30 साल से 20 साल से एक ही जगह पे प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं। हमारा ट्रस्ट जो पेशेंट हम पे कर रहा है, वो हमको वहां पर बनाना पड़ेगा शुरुआत से। अगर कोई 15-20 साल से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास जाता है, तो वो समझता है, उसको उसने पूछा हुआ है कि अच्छा ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने नाम सुना हुआ है, उन्होंने उनके रिजल्ट्स देखे हुए हैं, तो वो उन पे ट्रस्ट करते हैं उस तरीके से। रेपुटेशन उनकी अपने आप उनकी एक ट्रस्ट को बिल्ड अप करती है। पर एज़ अ यंग डॉक्टर, ये ट्रस्ट जो है मस्ट बी अर्न्ड इन एवरी कॉन्जिक्यूटिव जेस्चर। आपका अटायर कैसा है, द वे यू आर डीलिंग विद द पेशेंट व्हेन ही इज कमिंग टू योर क्लिनिक, द वे यू आर हैंडलिंग द केस, the clarity of mindset you have regarding the case he is bringing. When I talk about clarity of mindset, it is very important because अभी recently जितनी मैंने practice करी है, उसमें मैंने ये चीज बहुत notice करी है कि patients generally आके कहते हैं कि जितने भी पीछे prescribers ने उन्होंने देखा, जो भी doctors ने उन्हें देखा, due to their busy schedule or due to the सीरियसनेस ऑफ द इलनेस और ड्यू टू मेनी रीजंस, वो क्या करते हैं कि पेशेंट को खुल के बताते नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं दवाई, हम क्या तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा और एक्चुअल में पेशेंट सफर किस चीज से कर रहा है। तो जब भी मैं ये चीज पूछता हूँ पेशेंट से कि कभी आपने जिसको दिखाया, आपको पता चला कि व्हाट इज योर इलनेस या आपका क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चला, तो बहुत ब्लैंक रहते हैं वो वहां पर, और वो बहुत काइंड ऑफ एक इनर फ्रस्ट्रेशन भी रहता है कि सर कोई बताता ही नहीं है कुछ। और तब जब आप उनकी बीमारी को, उनके डायग्नोसिस को, हाउ यू विल टेक द केस फर्दर, इस चीज़ों को बेसिक लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक रैपो बनती है पेशेंट के साथ आपकी वहाँ पर। पेशेंट इस चीज़ को बहुत बार बताता है कि सर आप ये पहले डॉक्टर हो जो मुझे इस तरीके से समझा रहा है कि एक्चुअल मेरी बीमारी क्या है। और जब अगर आपका पेशेंट इस तरीके से बोल रहा है ना, तो समझ लीजिए आपके और आपके पेशेंट के बीच में एक लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया है। बिकॉज़ ही वाज़ नॉट टोल्ड दिस बिफोरहैंड। कभी भी उसको इस चीज़ से वाकिफ नहीं कराया गया था। Then again comes an important point, and that is empathy. That is genuine concern is your strongest prescription. When I talk about empathy, ये एक बहुत लाइट सब्जेक्ट नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कैथारसिस नाम से, जो कि साइकोलॉजी में आजकल बहुत फेमस है, पर इसका ओरिजिन बहुत ही पुरानी ग्रीक फिलॉसफी में आपको मिलेगा। दैट इज बेसिकली इमोशनल क्लेंजिंग। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कि द थेरेप्यूटिक रिलीज ऑफ पेंट अप फीलिंग ऑफन थ्रू टॉकिंग, क्राइंग और एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और आप उनसे इंक्वायर करते हैं कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू और शी इज गोइंग थ्रू, द इमोशनल पेंट अप नेचर ऑफ हिज इमोशंस दैट इज इनसाइड हर और हिम, वो जब बाहर आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी केस में बहुत तरीके से हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे सर हम होम्योपैथिक केस टेकिंग में इतना डिटेल केस लेते हैं, तो कैथारसिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, एंड कैथारसिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर केस टेकिंग ऑल्सो। सो क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं? पहला पॉइंटर इज साइकोलॉजिकल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। When you are talking to the patient and patient often says, doctor, I already feel better after talking to you, so that is a very positive sign, because आधा जो परेशानी, आधी जो टेंशन पेशेंट लेके आया था, जस्ट बिकॉज इसलिए उसकी डेवलप हो रही थी क्योंकि उसको कभी सुना नहीं गया, उसकी इस परेशानी को कभी डिटेल में किसी को बता नहीं पाया। शायद बहुत सारे रीजंस की वजह से जब भी किसी को, डॉक्टर को भी उन्होंने बताने की कोशिश करी, तो वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं आ पाई परेशानियां। और जब आप एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, जो हमारा एक तरीके से प्लस पॉइंट है, व्हेन वी टेक दिस डिटेल्ड केस, and this detailed case is not done just because we want to empathize with the patient, just because we want this catharsis to happen, because it is very important for the prescription point of view। जो रेमेडी सिलेक्शन है, उसमें आपका ये इमोशनल टर्मोइल, ये इमोशंस के एलिमेंट्स, इन सब चीजों का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके रेमेडी सिलेक्शन में। और ये जब इस फॉर्म में, जब पेंटअप रैथ बाहर निकलता है, पेंटअप इमोशंस बाहर निकलते हैं, और फिर आपका मेडिकेशन में भी हेल्प करता है और आप एक सिमिलम देते हैं जो कि फायदा करती है, ये पूरा एक होलिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं फील करता हूँ एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए है। तो इट इज बेसिकली हीलिंग बिफोर गिविंग द मेडिसिन। नाउ I will come to the last and very important point and the next aspect that we will talk about, that is confidence in acute। ये बहुत ही एक डिफिकल्ट लेसन जो मैंने सीखा है विद द हेल्प ऑफ माय टीचर्स एंड विद माय ओन प्रैक्टिस in the beginning, is that when you are prescribing for acute complaints, you should be well polished in that. Why?
बिकॉज द पावर ऑफ अर्ली विंस। पेशेंट शुरुआत में जब आपके पास आ रहे हैं और वो किसी अक्यूट कंप्लेंट के लिए आ रहे हैं, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, आप एक नए प्रैक्टिशनर हैं, वहां पर आपके ऊपर ट्रस्ट धीमे धीमे ही बिल्डअप होगा। और जब आप ऐसे अक्यूट केसेस में एक इंस्टेंटेनियस रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, एक इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट बिल्ड्स अप योर रेपुटेशन हाईली। In the early stages of practice, being well versed in acute prescribing is crucial because quick and effective relief creates the first impression of competence and establishes credibility and confidence in your practice. ये आपके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड पेशेंट के लिए भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और अगली बार शायद वो अक्यूट के लिए आए और अगली बार दिखाने ना आए, पर अगली बार अगर उसके पास कोई ऐसा पेशेंट आएगा तो वो जरूर आपको रेफर करेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है काइंड ऑफ। And how I learned this, it is a very important lesson of my life. There was a case that I was taking personally in the clinic of my guru, and the patient initially presented with an eruption on the hand, which appeared after extensive kitchen work. वो फीमेल थी जिनको बहुत ज्यादा किचन वर्क करी थी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वाटर था, उसके बाद कुछ इरप्शन डेवलप हुए, इचिंग थी, बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग कर रही थी। इस कंप्लेंट के लिए वो आई। पर जैसे जैसे उनका केस हम लोग लेते गए, वैसे वैसे एक मल्टीपल फॉर्म की परेशानियां उनके केस से निकलती गई, अपार्ट फ्रॉम द स्किन ट्रबल शी वाज हैविंग। एंड एज यंग फिजिशियंस एंड यंग प्रैक्टिशनर्स, हमें क्या रहता है कि जब भी हमें इतना डिटेल्ड केस टेकिंग मिलती है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि कितना कुछ मिल रहा है केस में देखने के लिए। तो हम बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोचने लगते हैं, अलग अलग दवाइयों के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसे ही मैंने भी किया, केस टेकिंग डिटेल में करी और मैंने एक टोटलिटी बनाई, केस प्रोसेसिंग करी और मैंने सर को बताई कि सर ये दवाइयां हो सकती हैं। सर ने थोड़ी सी देख के मुझे स्माइल करी एंड ही सेड द प्रिस्क्रिप्शन विल बी रक्सटॉक्स। नाउ आई वाज वेरी शॉक्ड कि रक्सटॉक्स क्यों दे रहे हैं सर, बिकॉज इतना सब चीज हमें केस में मिली है, इतने सारे सिम्टम्स हमें केस में मिले हैं, व्हाई इज ही प्रिस्क्राइबिंग रक्सटॉक्स? देन ही सिंपली आस्क्स कि पेशेंट किस लिए आया है। मैंने बोला सर इरप्शन है, स्किन का इरप्शन है, उसमें पानी में काम करने से। तो बोलते हैं कि अगली बार अगर इसके इरप्शन में आराम नहीं मिला, तो ये जितनी अलग अलग परेशानियां आपने लिखी हैं, इसके लिए आपको दिखाने नहीं आएगा, किसी और के पास जाएगा, क्योंकि वो आपको इरप्शन दिखाने के लिए आया है। अगर आपने इरप्शन ठीक कर लिया, तब वो ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट करके ये अलग अलग परेशानियां भी आपको दिखाने के लिए आएगा। सो इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी। एंड इसी से रिलेटेड आई वांटेड टू टेल यू द रेफरेंसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। आप बोलेंगे कि सर ठीक है, अक्यूट में हमें प्रिस्क्राइब करना आना चाहिए, पर व्हाट आर द रेफरेंसेस, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनके थ्रू हम उस रेमेडी तक पहुंच सकते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद एन अक्यूट केस। सो मैं इसी केस को लेते हुए आपको कुछ रेफरेंसेस के एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंसेस, पॉइंटर्स टू द कॉमन रेमेडी बाय डॉक्टर एम एल टाइलर। आप रक्सटॉक्स खोलेंगे जिसमें कि अलग-अलग एक पैथोलॉजी से नाम है, स्किन की पैथोलॉजी के, जैसे एरिसिपेलस हो गया, herpes zoster हो गया, इसमें रक्सटॉक्स खोलेंगे। There is a common feature in rux that you will find, and I've highlighted that also, that especially when it occurs after a wetting, rust is worse from damp. This is a common causation of rux when it comes to skin complaints. Another very important reference when it comes to acute complaint is NASH leaders in homeopathic therapeutics. जब आप NASH leaders in homeopathic therapeutics से रक्स टॉक्स पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि रक्स is no less valuable in chronic skin troubles than in acute. Eczemas of vesicular type are often cured by it. There is much itching which is not greatly relieved by scratching. In all such cases, of course, the constitutional symptoms weight as much as the local symptom. जो स्किन के लोकल सिम्टम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंडिकेट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी कभी कभार इंडिकेट करते हैं। सो फार एज डन इज डोज इज कंसर्न्ड, आई हैव यूज्ड इट बोथ हाई एंड लो। बोलते हैं हाई से लेकर लो तक हर पोटेंसी में मैंने यूज करा है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। देन कम्स अनदर बुक दैट इज डेस्कटॉप कंपेनियन। यहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो इसमें चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल पैथोलॉजी, और इसमें आपको स्किन चैप्टर में ये वर्स फ्रॉम गेटिंग वेट, ये अलग अलग टाइप के इरप्शन इन रक्सटॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। Last but not the least, Patak's repertory. It is one of the most prominent repertory when it comes to acute prescriptions. आप फाटक repertory में जाके एक जर्नल लीजिए कि डैम्पनेस वेट वेदर से एग्रीवेशन हो रहा है, और
उसमें काम करने से, वर्किंग से एग्रीवेशन हो रहा है, और बहुत अलग-अलग टाइप के इरप्शंस लीजिए, लाइक हर्पीज ज़ोस्टर हो गया, इन जनरल इरप्शन टेंडेंसी हो गया, पस्टुलेटिंग हो गए, वेसिकल्स हो गए, फेस इरप्शंस हो गए, और आप उस कॉजेशन के साथ उसको उठाइए। द फर्स्ट रेमेडी दैट यू कैन सी इज कमिंग इज रक्सटॉक्स। सो दीज वर द रेफरेंसेस विच वी लर्न फ्रॉम, और जो अभी भी हमारी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद अक्यूट केसेस। अब जब मैंने आपको शुरुआत में एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात बताई थी, द एक्टिव लर्निंग वाज कि रक्सटॉक्स क्यों दी, क्योंकि उस समय अक्यूट में आराम देना था, ना कि क्रॉनिक पे फोकस करके। एक बार अक्यूट ठीक हो गया तो क्रॉनिक अपने आप ठीक होगा, हम करेंगे डिटेल में उसमें टेस्टिंग। दैट वाज द एक्टिव लर्निंग। व्हाट वाज माय पैसिव लर्निंग? पैसिव लर्निंग वाज रेफरिंग टू दीज बुक्स and seeing कि why Rustox was given, why it was prescribed at that point. So these are the two learnings that I previously talked about. Then this is a very recent case. I guess 1 week back this case happened, and it is one of the very important cases of my life, because this is something which I have read many times, but it was the first time I used this medicine. A 92 years old male patient, the grandfather of one of my students, who came to me on WhatsApp and told me that his grandfather is suffering from acute attack of severe chest congestion. He was unable to expectorate mucus or phlegm and experienced marked difficulty in speaking, eating, and eventually he's not able to now drink also. वो बहुत समय से asthmatic हैं. The patient had a long-standing history of bronchial asthma and had been using corticosteroids for this particular asthmatic attack, which he is getting now at the age of 92. This happened on 23 August, just 1 week back. और जब मैंने उनकी एक सुपरफिशियल केस टेकिंग करी, जो क्योंकि वो खुद एबल नहीं थे बात करने के, या उनको सिम्पटम्स बताने के लायक भी नहीं थे, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ पी नहीं पा रहे थे, बहुत ही सीवियर टाइप की सिचुएशन थी। और ये दवाइयाँ उस समय पे उनकी चल रही थी ऑलरेडी, जो कि रिलीफ नहीं कर रही थी। इसी वजह से वो स्टूडेंट मेरे पास आया, व्हाट्सएप पे उसने पूछा और कि कुछ हम दे सकते हैं क्या होम्योपैथिकली? सो जस्ट ऑन टेकिंग द सुपरफिशियल केस, एक एक्यूट टोटैलिटी मैंने बनाई, एंड आई प्रिस्क्राइब्ड antimonium tart to the patient. Now, I thought of two remedies to be very frank, इसलिए मैंने ये चीज आपको दिखाई है यहाँ पर, क्योंकि मैंने शुरुआत में कॉकस कैक्टाई भी सोची और एंटीमोनियम टार्ट भी सोची. द प्राइमरी रेमेडी दैट आई थॉट ऑफ वाज एंटीमोनियम टार्ट, एंड आई सेड गो थ्रू विद एंटीमोनियम टार्ट 30, एंड वहां से आप चालू करिए. अगर मुझे लगेगा देन आई विल लेट यू नो कि कॉकस कैक्टाई देनी है नहीं देनी है. फर्स्ट आप एंटीम टार्ट दीजिए. Why I am showing you these screenshot? I'm not a big fan of showing screenshots, but this is very important to show you the timeline of relief. You see, the student messaged me at 6 p.m. कि this is the remedy I got and मैं दे दूं. 7:55 पे उनका आया. ओके, मैंने बताया उनको कि, और मैंने बोला कि कल सुबह आप बताइएगा कैसा है, आराम है या नहीं है, क्या है, हम फर्दर उस हिसाब से देखेंगे. आप देखिए 11:09 पे रात में उनका एक मैसेज आता है कि मच रिलीफ सर, थैंक यू सो मच. मैंने पूछा कि हाउ इज ही नाउ, हाउ इज ही डूइंग? तो उन्होंने बोला बोल रहे हैं थोड़ा लिक्विड थोड़ा लिया है, हाफ ग्लास 1-2 बार. सो जहां पर वो एकदम बोल नहीं पा रहे थे, खाना तो दूर की बात है, लिक्विड भी नहीं ले पा रहे थे, ही इज इंप्रूविंग स्लाइटली इन अ वेरी लिटिल मैनर. थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके वो एक आधा ग्लास पानी पिए, थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं. तो मैंने बोला ठीक है, आप सुबह में बताइएगा कैसा रहा उनका रिलीफ. दिस इज 24 अगस्त. 23 अगस्त को ये आया था, और 24 अगस्त को सुबह उनका मैसेज आता है, सॉरी शाम को उनका मैसेज आता है कि गुड इवनिंग सर, काफी आराम है सर, क्या मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है? मैंने बोला हाँ, अभी मेडिसिन कंटिन्यू करिए, जैसे जैसे आराम होता रहेगा आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहिएगा. एंड दिस इज द मैसेज आई गॉट टुडे. इस मैसेज में और कुछ नहीं दिखाना है, बस मुझे ये दिखाना है जो योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीमोनियम टार्ट ड्यूरिंग हिज इलनेस जस्ट डन द मिरेकल एज होम्योपैथी डू व्हेन द राइट रेमेडी इज प्रिस्क्राइब्ड. बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटीमोनियम टार्ट दी गई, एक हफ्ते बाद नाउ ही इज टेकिंग फूड ऑल्सो, ही इज ड्रिंकिंग प्रॉपरली ऑल्सो, ही इज मच बेटर. And antimonium tart was only prescribed. Coccus cacti was not prescribed. We'll come to why it was not prescribed and why I initially thought of it. क्यों एंटीमोनियम टार्ट सोची मैंने? जब भी मैं इस तरीके का कुछ केस देखता हूँ या मैंने कभी सुना है इसके बारे में, तो एक बार ये दवाई मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि अगर आप एनएम चौधरी सर की मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो उसमें एक केस दिया हुआ है. ये केस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेरी रिसेंटली आई वाज कॉल्ड इन टू डू माय लास्ट सर्विस टू एन ओल्ड लेडी राइटिंग इन द एगनी ऑफ डेथ.
aged and deceived. She was in the last stage of tuberculosis, pulmonary tuberculosis. Her pale blue face was covered with cold perspiration. Now, this is very important. The excessive accumulation of phlegm in the throat, which she was too weak to expel, was making a coarse rattling sound, choking her almost every minute. Drowsiness was great, अमाउंटिंग ऑलमोस्ट टू कोमा। ये जो एक्सपेक्टोरेशन का फिलअप होता है, ये जो एक्सपेक्टोरेशन का बढ़ जाना होता है और ये नहीं निकल पा रहा है, एक्सपेल नहीं कर पा रहा है, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, स्पेशली इन ओल्ड एज, स्पेशली इन पेशेंट्स विद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, pneumonia, tuberculosis, these kind of respiratory conditions. वो क्या बोलते हैं? The hands of death were too tight on her for human skills to relieve. The indicated remedy did it what it was possible to do. वो पेशेंट बचा नहीं, कोलैप्स कर गया, पर उस दवाई ने अपना काम करा जितना वो कर सकती थी उस समय पे। द इंडिकेटेड रेमेडी डिड व्हाट इट वाज पॉसिबल टू डू, that is made her expectorate the phlegm and relieved the choking and the rattling sound. The last few moments were passed in peace and quiet. The remedy was antimonium tart. Another reference I want to give you is through Dr. Emil Tyler's Materia Medica, homeopathic drug pictures. She writes antimonium tart is also indicated in the affection of. Now, note down, it is very important to note that it is very much indicated in children's as well as in old people. Old people, and particularly in orthopnea or threatening paralysis of the lungs in the aged, you hear loud rattling of phlegm in the chest, yet the patient cannot get up the phlegm. ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक कीनोट है एंटीमोनियम टार्ट का कि फ्लेग्म है, कंजेशन है, बाहर निकालना चाह रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, चोकिंग हो रही है, पर वो बाहर आ नहीं पा रहा है. When you will prescribe antimonium tart in such cases, the phlegm will come out and he or she will be relieved. Brita carb is complementary in such cases, Dr. ML Tyler ने लिखा है यहाँ पर. Now come to EB Nash Materia Medica. If antimonium tart possessed only one power of curing that it does upon the respiratory organs, it would be indispensable. डॉक्टर नैश लिखते हैं कि अगर एक ऐसी चीज है जो अगर एंटीमोनियम टार्ट करे और बस वही करे तो उसी के लिए वो इंडिस्पेंसिबल हो जाती है, उसका यूज एकदम परफेक्टली होना चाहिए, वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज में. नो मैटर व्हाट द नेम ऑफ द ट्रबल, वेदर इट बी ब्रोंकाइटिस, pneumonia, whooping cough, or asthma, if there is great accumulation of mucus with coarse rattling or filling up with, but at the same time there seems to be inability to raise it. Tartar emetic is another name for antimonium tart, is the first remedy to be thought of. This is true in all ages and constitution, but particularly so. All ages and constitution, but particularly so in children and old people. And lastly and finally, the reference that we all look up to, that is Alan Keynotes. Why I'm showing you these references? Because these are the books that we daily go through. ये बहुत स्पेशल बुक नहीं है, बहुत अलग तरीके से रेयर बुक नहीं है, पर ये डेली जो हम पढ़ते हैं अपने यूजी में, अपने पीजी में, वो किताबें हैं और उसी के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन हुआ है. Through the pneumogastric nerve, it depresses the respiration and circulation, thus producing the keynote of the remedy. That is, when the patient coughs, appears to be a large collection of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expectorated, but nothing comes up. And Dr. Allen writes, this is the keynote of the remedy. Now, we will come to, ये तो समझ लिया एंटीमोनियम टार्ट क्यों दी गई, अलग अलग रेफरेंसेस से समझ लिया और पेशेंट को रिलीफ मिला, ये भी हमने देख लिया. पर कॉकस कैक्टाई क्यों सोची थी उस समय पे? जब मैंने ये केस टेकिंग मैं पूछ रहा था, डिटेल्स पूछ रहा था, तो वो स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि उनके ग्रैंडफादर को ये रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के साथ-साथ किडनी की भी ट्रबल रहती है और इस बार भी उनको किडनी में उनके केएफटी में चेंजेस आए थे और उसकी वजह से उनको हल्का एडिमा भी था. तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना ऑफ रेस्पिरेटरी एंड किडनी ट्रबल्स टुगेदर, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी मच पिक्यूलियर टू कॉकस कैक्टाई. यहां पर मैंने नर रिपर्टरी का एक रूब्रिक आपको दिखाया है, ये आपको डिफरेंट मटीरिया मेडिकाज में थ्रू आउट मिल जाएगा, आप जाके पढ़िएगा. रेस्पिरेशन, एस्थमा, किडनी कॉम्प्लिकेटेड विद अफेक्शन ऑफ एंड टर्बिड यूरिन, सिंगल रेमेडीज कॉकस कैक्टाई. So this is a very prominent remedy when we get the concomitant of kidney troubles with the respiratory troubles. So इस वजह से मेरे दिमाग में कॉकस कैक्टाई आई थी और क्योंकि केस एक अक्यूट केस था, एज को मैंने देखा कि 92 इयर्स एज है, अगर मेरी एंटीमोनियम टार्ट नहीं काम कर रही है, मैं क्या अलग ऑप्शन सोच सकता हूँ. ऑलरेडी बहुत सीवियर स्टेज में चल रहा था पेशेंट वहां पर उस समय, तो इस वजह से मैंने कॉकस कैक्टाई भी बोल दिया था लेके रख लेने को, पर थैंक्स टू गॉड कि इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा.
Now, the next pointer and the next learning that I want to share with you, and that I frequently see, and I myself was very much influenced by it, is that diagnosis tells you the name, symptoms tells you the remedy. When we are young practitioner and just pass out and just we have read the practice of medicine from Harrison, from Davidson, we are very much influenced by the thought of diagnosing the case. And especially, I want to note down that I am not saying diagnosis is not important. It is very important for you to know. Diagnosis is of utmost importance. I'm just saying, don't get into that trap of getting influenced by it so much that you miss out the individualistic features of the case. How it happens कि देख बैलेंस बनाना पड़ता है हमको कि हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करनी है, पेशेंट की क्या बीमारी है ये भी जानना है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस भी कराने हैं और हमें दवाई भी निकालनी है। दिक्कत क्या आती है कि दवाई जिस चीज से निकलेगी वो सिम्टम्स बहुत अलग हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होगी वो सिम्टम्स बहुत अलग है और इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिम्पटम्स बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग होती है हमारे में क्योंकि हमें वो सिम्पटम्स चाहिए जो डिजीज के नहीं है। डिजीज के कॉमन सिम्पटम्स हमें प्रिस्क्राइबिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे, हमें अनकॉमन सिम्पटम्स इंक्लूड करने हैं। एंड इसीलिए हमें टोटलिटी पे फोकस करना है, लेबल पे फोकस नहीं करना है। एंड इसके लिए मैं रेफर करना चाहूंगा अफोरिज्म 153 में, जहां पर डॉक्टर हनीमन कहते भी हैं, द मोस्ट स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ डिजीज आर चीफली एंड मोस्ट सोली टू बी केप्ट इन व्यू। सबसे ज्यादा और सिर्फ हो सके तो इन्हीं पे इंपॉर्टेंस दे के ही प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। For it is more particularly these that very similar ones in the list of symptom of the selected medicine must correspond to। जो सिम्टम से आप रेमेडी देख रहे हो उस रेमेडी के सिम्टम्स इन्हीं सिम्टम से, कौन से सिम्टम से, ये जो पेक्यूलियर सिम्टम्स की यहां बात हो रही है, मैच करने चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग which relates to what I have just said। There is a patient suffering from pneumonia. Turns up he had a temperature of 102 degree Fahrenheit, which has originated after he got wet. He has pain in the chest, cough with blood-streaked expectoration, pulse 120, respiration 60. He has restlessness, he's worse midnight, and his tongue shows a triangular red tip. He has pain in the body, worse by beginning, motion better by continued walking. अब यहां पर इन्होंने पैथोग्नोमिक एंड नॉन पैथोग्नोमिक सिम्टम्स में डिवाइड करा। क्यों डिवाइड करा? बिकॉज ये जो पैथोग्नोमिक सिम्टम्स है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, वो लिखते हैं कि दीज आर द सिम्टम्स दैट अराइव एट द डायग्नोसिस एंड दैट इज निमोनिया। ये निमोनिया के सिम्टम्स है, ये डायग्नोसिस बताते हैं, ये आपकी प्रोग्नोसिस में, मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, पर ये सिम्टम्स आपके प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प नहीं करेंगे। इससे जो अलग सिम्टम्स मिले जो कि नॉन पैथोग्नोमिक हैं पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिस्क्रिप्शन आर origin after getting wet, restlessness, worst after midnight, triangular red tip of the tongue, pain in body, aggravation, amelioration, continued motion। I guess आपको रेमेडी पता ही होगी that we have just discussed in the previous case also, that was Rustox। इस चीज को एम्फोसाइज करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मैं चीज एम्फोसाइज करवा रहा हूँ या ये मैं ही सोचता हूँ ऐसा, ये सारे स्टॉलवर्ड्स ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और मैं आपको डॉक्टर टी.एफ. एलन की एक कोटेशन यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो बोलते हैं, डायग्नोसिस हैड नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड आई रियली बिलीव, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आई रियली बिलीव इट मे एंड ऑफन डज लीड पीपल एस्ट्रे। कभी कभार ये लोगों को आपकी सिमिलम से, आपकी टोटलिटी से दूर ले जाती है, इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स यंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो पूछते हैं कि सर ये इस बीमारी में काम करती है ये दवाई, ये इस बीमारी को ठीक कर सकती है ये दवाई। बीमारी को ठीक कर सकती है ये सवाल ही गलत है। आपके सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं कि नहीं ये सवाल होना चाहिए। अगर सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं तो पैथोलॉजी को हमें कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। और ये थ्रू आउट होम्योपैथिक लिटरेचर मल्टीपल टाइम्स बताया गया है। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि एक यंग होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को जब वो शुरुआत कर रहा होता है, थोड़ा-सा दिमाग में रखनी चाहिए। एंड फिर से मैं एक एक तरीके से कॉशन देना चाहूंगा। आई एम नॉट सेइंग डायग्नोसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट यू विल हैव टू चूज what is more important, what is leading to the remedy, and what will eventually help the patient. And that is the non-pathognomic symptoms, the symptom which will not help you in diagnosing the case, but diagnosing the remedy। ठीक है ना? अब हम आते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है मेरे लिए। अभी जो मैंने केसेस देखे हैं अपनी यंग प्रैक्टिस में, study in remedy relationship and clinical judgment, the second prescription is often more challenging than the first one।
पहला प्रिस्क्रिप्शन तो कभी-कभार केस इतना सारे सिम्पटम्स लेके आता है कि पहला आप बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर लेते हैं। पर रियल मैजिक हैपेंस व्हेन देयर इज़ अ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अब वहाँ पर क्या चेंजेस आए? किस तरीके के चेंजेस में आपको क्या समझना है कि ये पेशेंट बेहतरी की टुवर्ड्स जा रहा है या ये पेशेंट वर्स हो रहा है, एग्रवेट हो रहा है? किस तरीके से आप जज करेंगे इन चीज़ों को और क्या मेडिसिन नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे? क्या आपको सेम रेमेडी रिपीट करनी है? क्या आपको एक चेंज करना पड़ेगा जिससे ये क्योर के टुवर्ड्स लीड करे, कॉम्प्लीमेंट्री देनी पड़ेगी? बहुत सारे थॉट्स होते हैं माइंड में। 3 बेसिक किताबें मैं आपको बताता हूँ, नॉट एनी फैंसी बुक्स, व्हिच विल हेल्प यू इमेंसली इन द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, and that is Alan Keynote's Boric Materia Medica and a Dictionary of Practical Materia Medica by Dr. J.H. Clark. These are the three books. Clark में स्पेशली आप जब उसकी उनके इंट्रोडक्शन पार्ट के एंड में जाएंगे, देन कम्स द कंपैरिजन विद डिफरेंट रेमेडीज। वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे ये इंपॉर्टेंट होगा इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद अ केस। I got a case of bleeding hemorrhoids based on the totality of the symptom. The first prescription was made, and that was sulfur. And it covered the predominant features and ranked high in the repertorial analysis. But during the follow-ups, the patient reported slight improvement in general condition, but with certain changes in symptoms now with characteristic features denoting Aeschylus. शुरुआत में थोड़ा-सा बेहतरी हुई, कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई, पर कुछ सिम्पटम्स में चेंज भी आए, कुछ नए सिम्पटम 1-2 आए और जो नए 1-2 सिम्पटम आए और जो पुराने सिम्पटम चल रहे थे, अब थोड़ा-सा एस्कुलस के टुवर्ड्स केस मुझे मूव करते दिखा। क्योंकि मैंने जब फिर से एक रूब्रिक बनाया एनालिसिस करके तो देखा कि यहाँ पर रेपर्टोरियल टोटलिटी एस्कुलस के टुवर्ड्स इंडिकेट कर रही है। एस्कुलस वाज़ कमिंग इन द फर्स्ट रेपर्टोरियल शीट आल्सो, बट नॉट इन द प्राइमरी रेमेडीज़ दैट वी सी। सो मैंने उस समय पे एस्कुलिस के कीनोट के देखने के लिए एलन कीनोट से रेफर करी एंड जब मैंने एलन कीनोट से रेफर की थी ये बेसिक 3 सिम्पटम फर्स्ट फॉलोअप के बाद निकल के आए थे। दैट वाज ड्रैगिंग हेवीनेस वेट हेमोरॉइड्स के साथ एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो कि पहले इंटरनल थे पर अब एक्सटर्नल हो गए थे, बाहर आ गए थे एंड कॉन्स्टिपेशन विदाउट। दिस वाज अ वेरी पेक्यूलियर फीचर जो पहली बार मैंने इंक्वायर करा था, उन्होंने बोला था हाँ थोड़ा बहुत है, पर फिर मैंने जब डिटेल में अगली बार फिर से पूछा कि सर आपको कॉन्स्टिपेशन कभी रहा है, नहीं रहा है, क्या चीज़ है? आप थोड़ा तो बताइए बिकॉज़ कॉन्स्टिपेशन इवेंचुअली लीड्स टू हेमोरॉइड ये हमने पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला मेरे को कभी कॉन्स्टिपेशन रहा ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी मेरे को ये परेशानी डेवलप हुई है। So I took this rubric and Aeschylus was coming. Now, the first time I did not prescribe Aeschylus and I prescribed sulfur because it was coming in the primary remedies also. And because there is bleeding in Aeschylus in hemorrhoids, it was written, sorry, it was rarely bleeding in Aeschylus in Allen keynotes. तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन लगा मेरे को कि क्योंकि मेरे ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स का केस है और एस्कुलस में एलन की नोट्स में लिखा है कि रेयरली ब्लीडिंग, तो शायद मुझे सल्फर के साथ ही जाना चाहिए और एस्कुलस के साथ नहीं जाना चाहिए। पर जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में फॉलो अप देखा और उसके बाद जब ये रेमेडी आई, तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान गया जो कि है रिलेशनशिप सेक्शन। आप रिलेशनशिप सेक्शन में पढ़िए, इट इज रिटन यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स। सल्फर और नक्स ने इंप्रूव कर दिया है पाइल्स के केस को बट अभी क्योर नहीं करा है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और तब आप एस्कुलस प्रिस्क्राइब करते हैं, देन इट क्योर्स द केस एंड ऑन दिस बेसिस आई प्रिस्क्राइब्ड एस्कुलस एंड द पेशेंट गॉट मच 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 बेटर। सो ये एक केस था जहां पर मुझे ये पता चला कि इस तरीके से भी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब मेरी ये एक आदत बन गई है एज अ यंग प्रैक्टिशनर कि मैं रेफर करता हूँ रिलेशनशिप सेक्शन को, खासकर जिस दवाई को मैंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में दिया है उसी दवाई के रिलेशनशिप सेक्शन को अलग अलग किताबों से, जो मेन किताबें मैंने आपको बताई जैसे डॉक्टर क्लार्क की किताब हो गई, डॉक्टर एलन की किताब हो गई, डॉक्टर बोरिक की किताब हो गई, और मैं देखता हूँ व्हाट आर द क्लोजली रिलेटेड रेमेडीज और क्या मेरे रेपर्टोरियल एनालिसिस में भी कोई ऐसी रेमेडी आ रही है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देगी और इस केस को फर्दर आगे ले जाएगी। Another such case which I wanted to discuss with you is a case of postpartum elevation of liver enzymes managed with individualized homeopathy. A 36 years old female patient presented with abdominal discomfort and pain localized in the right hypochondriac region, along with irritation, burning sensation, started during pregnancy, but followed for 5 to 6 months. There is a common phenomena कि liver enzyme का थोड़ा हाई होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है, 4 हफ्ते में। पर ये बढ़ता ही चला जाए और इस लेवल पे पहुंच जाए कि एस डी पी टी वॉज 231, एस जी ओ टी वॉज 172। सो एक कंसर्न था और पेशेंट
को सिम्पटम्स भी आ रहे थे, परेशानी भी हो रही थी उसकी डेली लाइफ में। अल्ट्रासाउंड उस समय पे जब हुआ था, जब वो रिपोर्ट्स लेके आए थे दोनों की, एलएफटी की और अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें माइल्ड हेपेटोमेगाली था व्हिच वाज़ कॉमन। A detailed case taking was done and the remedy was prescribed. Now, the remedy that was prescribed was on the basis of these symptoms. This is the totality of the case. That is enlarged liver, burning, smarting in the right abdomen, pain in hypochondriac region, flatulence, weakness with liver complaints. This is a very prominent keynote of this case also and of the remedy chelidonium also, which was eventually prescribed. जो कि आप देख रहे हैं कि repertorial analysis में आगे आ रही है. Profuse perspiration at night, dreams of falling. So, on the basis of totality, chelidonium was prescribed. And chelidonium is a very important remedy for the sphere of action that we are dealing with also, the liver complaints, gallbladder complaints, जिसमें chelidonium का अपना बहुत specific role होता है. तो इन दोनों के basis पे और totality के basis पे chelidonium prescribe करी गई. Now the thing is, another important reason was chelidonium was that when you will read Borix Materia Medica in the introduction part, bilious complication during gestation, that is pregnancy, is a very important feature of chelidonium. ये जो पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, bilious complaints हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो अराइज हो, तो chelidonium is the major remedy. बट जब उनका फॉलोअप किया गया, उनके पेशेंट में सिम्टम्स में आराम थे, सिम्टोमेटिक रिलीफ था, पर थर्ड फॉलोअप के बाद एक प्रोमिनेंट सिम्टम्स में कुछ चेंज आए, 2 नए सिम्टम्स आए, दैट वाज़ पेशेंट कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स विद अ मार्क्ड इवनिंग एग्रावेशन, पर्टिकुलरली आफ्टर 6 पीएम। वो बोलती हैं शाम को 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा डकार आना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, इरिटेशंस होना, ये बढ़ता चला जाता है डॉक्टर साहब। एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द स्टमक इवन आफ्टर स्लाइटेस्ट इनटेक ऑफ फूड। थोड़ा सा भी कुछ खाऊंगी ऐसा लगेगा पूरा पेट फूल गया है मेरे। ये उनके वर्डिंग्स थे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पहली रेपोर्टोरियल शीट मैंने दिखाई है आपको, इसमें लाइकोपोडियम इज अ prominent remedy which is coming in the third number, which is also covering many symptoms. And on the basis of these symptoms, which I added to the persisting totality, lycopodium just shifted to the first place. अब ये चलो शिफ्ट हो गया, ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स लाइकोपोडियम के भी थे, पर और क्या चीज ऐसी दिखी मुझे रेफरेंसेस में जो कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन लाइकोपोडियम का हो पहली दवाई के बाद, ये मुझे इन्फ्लुएंस करे, और वही किताबों से मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा। डॉक्टर ईबी नैश की लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स जब आप पढ़ते हैं चेलिडोनियम, इससे फर्दर स्टडी विल शो दैट चेलिडोनियम नॉट ओनली इज अ राइट साइडेड रेमेडी जस्ट लाइक लाइकोपोडियम, बट इन मेनी अदर पॉइंट्स स्टैंड क्लोज टू लाइकोपोडियम, एंड इन माय एक्सपीरियंस one is often found indicated after the other. सो जो केस में मिल रहा है कि इंडिकेशन अब लाइकोपोडियम को टुवर्ड्स लीड कर रहे हैं, वही किताबों में भी लिखा हुआ है कि हो सकता है कि चेलिडोनियम के बाद लाइकोपोडियम की टोटलिटी निकल के आए। व्हेन यू विल रीड एलन की नोट्स रिलेशनशिप सेक्शन ऑफ चेलिडोनियम, क्या लिखा हुआ है? आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, सल्फर follow well and will often be required to complete the cure which has been prescribed chelidonium in the first place. So these are the golden principles that are given for second prescription in these basic books that we have read throughout our UG. क्या लिखे हैं? सिंपल लिखा है कि भैया लाइकोपोडियम दवाई अच्छा फॉलो करेगी अगर आपने चेलिडोनियम दी है, केस में उतना आराम नहीं है, थोड़ा सा बेटर हुआ, कंप्लीट करने के लिए क्योर को लाइकोपोडियम को देके देखिए आप। And on the basis of that, lycopodium was then prescribed, and there was a major change. पेशेंट की सिम्टोमेटिक रिलीफ में बहुत मेजर चेंजेस आए लाइकोपोडियम के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। फर्स्ट टाइम जब वो आई थी 23 मई को अपना रिपोर्ट लेके आई थी, 3 जून द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ चेलिडोनियम वाज मेड। तब एसजीपीटी एसजीओटी था 231 172, एंड आफ्टर दैट जस्ट अभी 25 अगस्त को ये रिपोर्ट हुई है। सिम्टोमेटिकली वो पिछले 15-20 दिन से बेटर चल रही थी, तो आई थॉट कि एक एलएफटी रिपीट कराते हैं हम लोग। एलएफटी रिपीट कराने पे एसजीओटी was 52 and एसजीपीटी was 60. So this was the drastic change that happened in the reports also, in her symptoms also, and it was all due to the second prescription that was done through the books that we read daily. This is an important lesson that I also learned and that I wanted to share with all of you. Now, every case is a lesson. Some teach through cure, others through experience. एक इंपॉर्टेंट लास्ट में कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके बाद 1-2 स्लाइड्स और हैं और फिर हम फिनिश करेंगे कि पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच जब आप नई नई अपनी क्लिनिक चालू कर रहे हैं, आप नए नए केसेस देख रहे हैं, तो इट विल हैपन दैट हर केस फॉलो के लिए ना आए।
शायद उनको आपका वे ऑफ डीलिंग विद द केस नहीं पसंद आए, शायद उनको पहली बार में फ़ायदा नहीं हुआ तो उनको लगा कि शायद ये नहीं ठीक कर पाएँगे, यंग हैं, नहीं कर पाएँगे। और आप क्या सोच सकते हैं कि अरे नहीं आए, अब इसको किनारे कर दिया आपने। व्हाट आई हैव लर्न्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ माय गुरु एंड देयर गुरु आल्सो, कि हर केस को, चाहे वो आपके पास फ़ॉलो-अप के लिए आ रहा हो, ना आ रहा हो, निकालिए, रिविज़िट करिए, री-स्टडी करिए, देखिए कि कहाँ आप गलत हो रहे थे। क्या आपने मिस आउट करा? क्या आप बेहतर कर सकते थे? और ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद करना ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि अगर फ़ॉलो-अप के लिए आया पेशेंट, देन यू आर रेडी। यू आर रेडी विथ व्हाट द केस हैज़ टू ऑफर। अगर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं आ रहा है पेशेंट, देन दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू, कि व्हाट आई कुड हैव डन रॉन्ग, वहां पर आप सीख सकते हैं। सो बेनिफिट्स क्या है इसके? अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द केस बिफोर द नेक्स्ट फॉलो अप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजिंग व्हाट कुड वी हैव डन इन अ बेटर वे। द ऑब्स्टिकल्स दैट जनरली कम विद द पर्टिकुलर पैथोलॉजी, पैथोलॉजी को स्टडी करिए, डायग्नोसिस को स्टडी करिए, देखिए कि क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते थे जो शायद हमारे केस में दवाई सही गई हो, पर ये ऑब्स्टिकल्स की वजह से शायद केस में आराम ना मिला हो। Closely related remedies for further evaluation. Maybe it was not this remedy, maybe it was that remedy. Study those remedies, study the relationship between those remedy. What could have indicated to that remedy which I did not prescribe? And that will stay for with you forever. वो learnings आपके साथ रहेंगी और next time जब आप ऐसे किसी केस से डील करेंगे, तो वो गलती जो आपने पहले करी थी, वो गलती फिर से नहीं होगी आपसे। तो ये पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ यंग होम्योपैथ। अब मैं 2 ऐसे केसेस बताऊँगा, जो कि एक फेल्ड केसेस हैं मेरी क्लिनिक के, जिसमें मैं फ़ायदा उतना नहीं कर पाया और उसके थ्रू मैंने क्या सीखा वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वन वाज़ एन एक्यूट केस ऑफ कोराइज़ा, जिसमें मैंने जब दवाई को देखा, दवाई को प्रिस्क्राइब करा, वो मैं जनरली कोल्ड कोराइज़ा में हम लोग, एक आदत होती है, क्या देखते हैं कि कुछ ठंडा खाया था क्या? कुछ ऐसा चेंज ऑफ वेदर हुआ क्या? कुछ खट्टा तो नहीं खाया? बच्चों की आदत होती है आइसक्रीम तो नहीं खाई, ये तो नहीं खाई। हम ये सारी चीज़ें इंक्वायर करते हैं। What I used to miss and which I thought of after the case was gone, and they did not come for the follow up, maybe because they did not get better from my medicine, was that I did not inquired into the psychological aspect of the patient. और ये मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैं अभी एक नए बच्चे का केस ले रहा था और उनको, उस बच्चे को आफ्टरनून के बाद ही हेडेक हो रहा है, जब वो स्कूल से वापस आ रहे हैं। और जब स्कूल से वापस आके उनको हेडेक हो रहा है, तो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये वैसे तो नहीं हो रहा, वैसे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से आने के बाद तो जब मैंने इंक्वायर करा कि स्कूल में इनके साथ कुछ है, इस तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो मदर ने उनकी बताया कि हाँ, मैंने इंक्वायर करा सर, और वो इस बार फ़ॉलो-अप में आके बताए कि स्कूल में टीचर इनको मारती हैं क्योंकि ये काम ढंग से नहीं कर रही हैं अपना। और ये इससे बड़ा परेशान रहती हैं, बड़ा डर के रहती हैं, और इस चक्कर में जब भी स्कूल से आती हैं, इनको सर दर्द हो रहा होता है, ये हो रहा होता है। अब मुझे ये चीज़ स्ट्राइक करी कि ये चीज़ भी एक एस्पेक्ट है, द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स दैट वी ऑफन मिस इन अ केस, स्पेशली इन acute केसेस ऑफ कोल्ड, कफ एंड कोराइज़ा। तो इस चीज़ में भी इंक्वायरी चाहिए होगी, जिसके लिए मैंने आपको ये कुछ रूब्रिक्स दिखाए हैं, जो कि एलिमेंट्स दिखाते हैं फ्रॉम साइकोजेनिक कॉजेज़। जो कि है लव, disappointed ailments from scorn, ailments from contempt, ailments from bad news, ailments from grief, ailments from egotism, ailments from different kind of aspects which you often miss in an acute case. And sixth aphorism में डॉक्टर हनीमैन कहते हैं, changes take note of nothing except the changes in the body and the mind. तो दोनों पे ही फोकस करते हुए चलना है। तो this was one of the learnings that I got through this case. अनदर वन वाज दैट कॉज एंड इफेक्ट, आप सुनते होंगे, एक कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी में कॉज एंड इफेक्ट का। जनरली क्या होता है कि हम एक कॉज देखते हैं केस में कि ये चीज एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, ये एलिमेंट था केस का, और इसके बाद ये इफेक्ट्स आए। अब जनरली क्या होता है, जब एलिमेंट कभी कभार बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम इफेक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, हम एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि साइलेंट ग्रीफ मिला तो इग्निशिया सोचते हैं, स्टाफ सोचते हैं, लाइकोपोडियम सोचते हैं, एंगर के साथ मिल रहा है तो लाइकोपोडियम सोचते हैं। लेकिन हम इफेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट मिल गया है केस का। अब कभी कभार क्या होता है, हम इफेक्ट्स को बहुत प्रोमिनेंटली देख रहे होते हैं, एलिमेंट्स को उतना फोकस नहीं करते, शायद वो थोड़ा सा लेस लेवल पे मिला हो, या हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हो। पर जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तभी सिमिलम निकल के आएगा। The cause and the effect should be given equal importance in your case.
For example, this is a common ailment, that is mind anger ailments from aggravation, grief with silent. फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन सी मेडिसिन हैं? एकोनाइट, ब्राइनिया, इग्निशिया, लाइकोपोडियम, स्टैफ. नाउ ऑल आर इन द सेम ग्रेड, सबका कॉस्ट का लेवल सेम है. अब कौन सी देंगे अगर सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करेंगे तो? अब इसी कॉज के साथ आपको इफेक्ट्स क्या मिले? ब्लैडर में यूरिनेशन में डिफिकल्टी मिल रही है, डिसयूरिया मिल रहा है मैरिड वुमेन में, अर्जिंग टू यूरिनेट है, मॉर्बिड डिजायर है, यूरिनेशन रिटार्डेड है, मस्ट वेट फॉर यूरिन, इस तरीके का सिम्टम मिल रहा है. तो स्टाफ अपने आप आगे आ जाती है उन रेमेडीज में, क्योंकि इफेक्ट और कॉज दोनों मिलके स्टाफ के टूवर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं. जब हम सिर्फ कॉज को देख रहे थे तो वो चारों को इंडिकेट कर रहे थे. इसी में अगर इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन हाइपोकॉन्ड्रिया में आ जाता है एब्डोमेन में, क्लोथिंग सेंसिटिव टू हो जाता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन 4 पीएम पे हो जाता है, डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग हो जाता है, ये इफेक्ट्स आ जाते हैं आफ्टर दैट सेम कॉज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, देन द रेमेडी इज चेंज्ड. लाइकोपोडियम कम्स इन द फर्स्ट प्लेस. व्हाई? बिकॉज द कॉज रिमेन्स द सेम, द इफेक्ट्स इज हैज चेंज्ड. तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट का अमेलगमेशन है, दोनों का एक सिमिलैरिटी के लेवल पे जब हम दोनों को मैच कर रहे हैं, तो ही एक प्रॉपर रेमेडी पे हम पहुंच पा रहे हैं. तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा अपने केसेस में सोचना पड़ेगा. So these were some of the lessons that I personally learned, and the concluding message from my side to all the students of homeopathy that are in UG or PG or that are starting their practice is these three words which I have personally felt have helped me a lot. That is persistent, perseverance, and patience. आप जितने persistently, जितने patiently, perseverance के साथ लगे रहेंगे इस जॉब में, that is of treating the humanity, that is of learning about homeopathic cures, that is about taking the case, dealing with patients, dealing with different pathologies, जितना पेशेंस के साथ और जितना परसिवरेंस के साथ इसमें लगे रहेंगे, उतना ये आपको आगे फायदा करेगा. हो सकता है वो फायदा तुरंत ना दिखे, कुछ सालों बाद दिखे, पर दिखेगा. यू हैव टू वेट फॉर इट. The three pillars for which every young homeopath healing takes time. So trust the process, refine your art, and let experience make you a master. Thank you so much. Dr. Mansi, are you there? Hello. Yes, sir. Yes, I have finished with my session, Dr. Mansi. So your voice is not clear. Can you please repeat? I have finished the session. Yes, sir. So I would like to ask if anyone from the attendees, if they have any queries, we can have the question and answer session now. Yeah, sure. So any doubts in the selection of rubrics or the medicine selection? If anyone want to put out, you can please participate. So I guess we have. So Shanti is asking if the beginner how to handle if the case has failed. See, I recently talked about this on my class also. There was a similar question कि फेलियर से कैसे डील करें, नहीं ठीक हो रहा. तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, जो फेलियर से मैंने चीजें सीखी, only thing you can do is learn from your failures. That is the only thing you can do. कि what mistakes, it is very important to go and retrospective study करो कि क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, किस तरीके से क्या चीज मैंने मिस आउट करी, and that will improve you for the further cases that you will see. तो एक ही तरीका है टू रीविजिट द केस, इसीलिए मैंने वो स्लाइड भी रखी थी, टू री विजिट एंड सी कि व्हाट आई पर्सनली डिड, व्हाट वाज द लैक्यूना
you can consult some senior physicians. You can consult with your senior कि I took this case, I prescribed this, what was my mistakes, या क्या चीज मुझसे मिस आउट हुई, आप बताइए। इस तरीके से आप सुन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और फिर फर्दर जितने केसेस आप देखेंगे उसमें आप ये गलतियां तो इवेंचुअली नहीं करेंगे जो इस केस में हुई। पर अगर आप नहीं देखते हैं फेलियर के बाद, और आप रिविजिट नहीं करते हैं, देन यू आर बाउंड टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। And next we have anonymous questions. I'm a student of BHMS first year. Want to know what to do to be the great physician. So it's a very general question. So basically, if you want to be a great physician, देखिए अब हम भी इस राह पे हैं कि ये हम बन जाए, ये हमें भी अचीव करना है, और इस राह पे ही रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। To pursue this path of excellence is the only way you will eventually be somewhere which you will be proud of. Are you getting my point? आप शुरुआत से शुरू करिए, आप अपने डेडिकेशन से, अपने परसिवरेंस से, पेशेंस से लगे रहिए, आप होम्योपैथिक लिटरेचर अच्छे से पढ़िए, आप बेसिक्स को अच्छे से ग्रास्प करिए, और इवेंचुअली जैसे-जैसे आप ये पर्सिस्टेंटली करते रहेंगे फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, थ्रू आउट योर यूजी, देन थ्रू आउट योर पीजी, यू विल सी द रिजल्ट्स इवेंचुअली। धीमे-धीमे आपको अपने अंदर वो चेंजेस नज़र आने लगेंगे। व्हाट टू लर्न, इफ यू वांट टू आस्क व्हाट टू लर्न, बेसिक मेरा यही मानना है कि केस टेकिंग फॉर अ यंग प्रैक्टिशनर, केस टेकिंग इज़ वन थिंग व्हिच यू शुड बी हैविंग अ ग्रेट ग्रास्प ऑन। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो कि बहुत ऐसा पार्ट है जो 90%, ऐसा कई किताबों में लिखा है, द 90% ऑफ फेलियर इन होम्योपैथी हैपेंस बिकॉज़ द केस वाज़ नॉट टेकन प्रॉपर्ली। Hello. So that's, यस, I think, sir, it's time to wrap up. We have ओके, ओके। solved the questions also, अगर and the किसी session को will और कोई be डाउट होगा तो मेरे को मेल कर देंगे। sure, sir, sure. And this या session will be also get live on the YouTube of Homeopathy 360, so they can also put suggestions and questions in comment box. श्योर, श्योर, श्योर। So I would like to thank Dr. Shikha sir. Thank you so much for your valuable time, and the session was very informative. Thank you so much, sir. थैंक यू डॉक्टर मानसी, थैंक यू सो मच। Thank